everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 10 September 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But before we move on to the important articles of the day, आज का जो डेट है 10 September, इस दिन को क्या ऑब्जर्व करते हैं? इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं as World Suicide Prevention Day. ठीक है? So what is the theme this year? It is changing the narrative on suicide. Now do you remember कि कुछ दिन पहले we had discussed about a WHO report. तो उस रिपोर्ट में कहा था that suicide is one of the leading causes of death, especially among the youth, right? तो ये बहुत ही एक स्टार्किंग डेटा देखा था कि in 2021 में 7 लाख लोगों से ज़्यादा डेथ्स हुई है mainly because of suicide. So to create awareness, to ensure that हम prevent कर सकते हैं, that the people feel comfortable to discuss their problems with somebody that they confide in, right? इसीलिए ये हम डे ऑब्जर्व करते हैं to create sort of an awareness. याद रखना है कि September is considered as the National Suicide Prevention Month. You usually find the color of the ribbon purple and teal. ठीक है, so these two colors are associated with the ribbon that is for the awareness. जैसे हम red ribbon associate करते हैं for AIDS, right? So similarly, purple teal color का ribbon होता है for suicide prevention awareness. Now, what has India set the target for suicide prevention? The answer is 10% by 2030. तो हमको mortality यानी कि deaths of suicide reduce करना है by 10% by 2030. So this is a target that you have to remember. Again, it was discussed a few days ago. Let's now proceed to the articles of the day. पहला आर्टिकल जो हमको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल के दिन हमने देखा था कि 9 सितंबर को हमने देखा there was a contestant of the vice president elections. तो अभी vice president चुन के आए हैं and who is he? He is CP Radhakrishna, who is the governor of Maharashtra. Of course, now he will resign from the post of governor of Maharashtra and he is our 17th vice president. Okay, तो ये नंबर याद रखना है. He is the 17th vice president of India. Now let us quickly understand what were the procedure involved in this and who were the members that voted and so on. So CP Radhakrishnan, of course, was the 17th vice president, has been elected. He was also the former गवर्नर ऑफ झारखंड एंड यहाँ पे 152 वोट्स के साथ वो जीत गए थे. उनके कंटेंडर कौन थे, ऑपोजिशन में कौन थे? दैट इज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, राइट, जो ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक से थे एंड ही गॉट अबाउट 300 वोट्स. सो 452 वोट्स वन बाय सीपी राधाकृष्णा. टोटल 781 थे, कुछ वेकेंसीज थे एंड टर्नआउट कितने आए? द टर्नआउट दैट वी सी 767. So some of them must have abstained as well. Now let's quickly also see what is or how are the vice president के elections conducted. याद रखना है हमको कि all the MPs participate in this particular इलेक्शन प्रोसेस. ओके, तो सभी एमपीज यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. हम देखते हैं कि अभी तक सिर्फ 3 वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया था. सो वी कंडक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस आफ्टर द रिजिग्नेशन ऑफ जगदीप धनकर. सो इनके पहले कौन थे? जगदीप धनकर. और कौन से 2 ने रिजाइन कर लिया था? मेनली वीसी वीवी गिरी, ओके, एंड आर वेंकटरमन. बिकॉज ये जो थे R. Venkataraman and V.V. Giri, both of them resigned because they wanted to stand for the president elections. Okay, तो ये उनका रीजन था. जगदीप धनकर cited health concerns, इसीलिए उन्होंने resign कर लिया. So this is with regard to vice president. Of course, we have already covered this article right yesterday. तो अगर आपने कल का news articles नहीं देखे हैं, please do watch it because we've also covered many points with regard to the vice president. So I won't be repeating that. Let's now proceed to the next article which is with regard to center ने grant किया है कुछ licenses
to 5 such firms कि वो मैन्युफैक्चर करे मलेरिया का वैक्सीन। ओके, तो 5 ऐसे फर्म्स को बोला है कि चलो तुम मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करो। तो ये वैक्सीन जो है ये किसने डेवलप किया है? द वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय द ICMR व्हिच इज द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और उसके अलग पार्टनर्स ने बनाया था। सो ये इंडिया का इंडिजीनियस यानी खुद से बनाया हमने ये वैक्सीन है जिसका नाम है Adfalcivax. You need to know the name. Now, which are the 5 firms that are selected to manufacture this vaccine? The answer is Indian Immunological Limited, Techni Invention Life Care, Panacea Biotech, Biological E एंड Zydus Life Sciences। ये 5 फर्म्स को सिलेक्ट किया गया है ताकि वो इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई इज गवर्नमेंट अलाउइंग दिस मैन्युफैक्चरिंग टू हैपन? बिकॉज वी आर नाउ कंसर्न विद मलेरिया। तो मलेरिया जो है ये कौन से दिन में ऑब्जर्व करते हैं? द वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25th of April। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस डे। कैन यू टेल मी ट्यूबरक्लोसिस डे किस दिन को मनाया जाता है? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो मलेरिया का डेट है 25th April, ओके। और इस बार का थीम क्या है? मलेरिया एंड्स विद अस, रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन, रीइग्नाइट। Now the focus here is why? Because we see that India का टारगेट है कि वो 0 इंडिजीनियस मलेरिया केसेस, यानी यहाँ हमारे लैंड से कोई भी केस नहीं होना चाहिए बाय 2027, ओके। लेकिन बाहर से कोई आता है, एलिमिनेशन अगर हम बात करें तो वो होगा 2030। सो रीड द क्वेश्चन वेल। इफ द क्वेश्चन सेज एलिमिनेट कब करेंगे तो 2030 मार्क करना, लेकिन अगर बोला है 0 इंडिजीनियस केसेस इंडिया कब सेट कर रही है टारगेट, तो आंसर है 2027। अगर WHO या वर्ल्ड टारगेट है तो क्या लिखोगे? 2030, because again this comes under the SDG goals for elimination of malaria. Now malaria कैसे फैलता है? Malaria is a life threatening disease. ये एक parasite से फैलता है from the genus called as Plasmodium. ओके, तो ये जो प्लास्मोडियम है दिस इज द कॉजेटिव एजेंट कह सकते हैं दैट कॉजेज मलेरिया। और ये जो प्लास्मोडियम कौन कैरी करता है? विच इज द वेक्टर दैट इज फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। सो थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो मलेरिया फैलता है। हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। फीवर, हेडेक, चिल्स, एंड ये 10 से 15 दिन के बाद नजर आता है। ओके, सो दिस इज द जनरल एस्पेक्ट दैट वी हैव कवर्ड विद रिगार्ड टू मलेरिया। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू द हड़प्पन लैंग्वेज। सो वी सी दैट कल के दिन वी आर गोइंग टू हैव अ कॉन्फ्रेंस ऑन हड़प्पा। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। सो द कॉन्फ्रेंस नेम इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हड़प्पन स्क्रिप्ट। ये ऑर्गेनाइज करने वाली है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और इसका जो होस्ट होगा वो है द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। यहाँ पे अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट, स्कॉलर्स, ओके, एकेडमिशियंस होंगे एंड दे विल बी अटेंडिंग दिस सेशन। यू कैन आल्सो सी अ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पुनीत गुप्ता, ही इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग। ही इज नोन टू हैव डन अ ब्रेक थ्रू इन विद रिगार्ड टू द स्क्रिप्ट। इंडोलॉजिस्ट जिसे हम कहते हैं, जिनको ज्यादा जानकारी है इंडिया के बारे में, उसका कल्चर के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, जो बहुत स्टडी करते हैं साउथ एशियन स्टडीज के बारे में, तो ये सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। The main guest of course is our Prime Minister Narendra Modi and our Home Minister Amit Shah. तो यहाँ पे क्यों ये कॉन्फ्रेंस रखा गया है? कॉन्फ्रेंस रखा गया है टू अटेम्प्ट टू डिसाइफर द स्क्रिप्ट। जो हड़प्पा स्क्रिप्ट है उसको डिकोड या डिसाइफर करने में, हमको याद है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि लोगों ने क्या लिखा है, राइट? उस टाइम पे जो स्क्रिप्ट है वी हैव नॉट डिसाइफर, समझ में नहीं आया है। तो अभी हम वापस से देखेंगे, अलग अलग फैक्ट्स देखेंगे, अलग अलग स्टडीज देखेंगे, एंड वी विल बी एबल टू देन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसका ओरिजिन क्या है या ये क्या बताना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द क्लेम्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे संस्कृत से यहाँ देयर इज सम कनेक्शन, ओके, जैसे कि ये एरोस्पेस इंजीनियर है फारूक नकवी, ऑफ कोर्स वी डोंट नीड टू नो दीज नेम्स, बट द
the ideologies that are there, theories that are there, that we need to know. कि कुछ लोग संस्कृत कहते हैं, जैसे तमिलनाडु says कि it has Dravidian roots. आपने सुना होगा कुछ मंथ्स पहले तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है, तो इन्होंने क्या किया, $1 million का गिफ्ट अवार्ड रखा है, $1 million का, कि एनीबडी हु डिसाइफर्स द हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड ऑफ कोर्स रिलेट्स इट टू द द्रविडियन रूट्स, इनको कितना मिलेगा, $1 million. तो यहाँ पे ऐसा भी कोई यू कैन से आइडियोलॉजी है. द नेक्स्ट थियोरी इज आदिवासी लैंग्वेज हो सकता है, सो संताली या गोंडी, यहाँ से कोई कॉमन लिंक हो सकता है, ऐसे कुछ और कहते हैं. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक्चुअली में एक स्क्रिप्ट नहीं था, इट इज मेनली टैक्सेशन एंड कॉमर्स का इंफॉर्मेशन. ओके, इट्स मेनली अबाउट रूल्स ऑन टैक्सेस, ये एक्चुअल में स्पेलिंग बेस्ड नहीं है. Then there are some that are saying कि ये ऋग्वेदिक मंत्रास भी है इसमें, but if you understand कि ये जो ऋग्वेदा या वैदिक सोसाइटी की अगर हम बात करें, they came after the Harappan, so mainly this may not be possible. तो ये अलग अलग क्लैशेस जो हम देखते हैं, द्रविडियन, संस्कृत, आदिवासी, ये कॉन्फ्रेंस शोकेस करेगी, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देगी, and they're going to see which is the closest to the deciphering of this script. Now we have to know what with regard to the exam. We need to know about the Indus Valley civilization or the Harappan culture. तो अगर हम देखें Harappan culture की बात करें, so this is located mainly in this part of the region, which is the northwest and the western part of India, as well as if you talk about पाकिस्तान से लगते हुए जो भी sites हैं वहां पे भी हैं. So यहाँ पे ये Indus Valley civilization कहते हैं because they are mainly on the banks of the rivers Indus and its tributaries. तो आप देख रहे हो यहाँ पे Indus river है, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, तो इनके बैंक्स पे यहाँ पे कम्युनिटीज सेटल हुई, इसीलिए नाम पड़ता है इंडस वैली सिविलाइजेशन. फिर हड़प्पा क्यों नाम पड़ता है, हड़प्पा बिकॉज इट वाज द साइट इन विच वी फाइंड दैट दे हैड फर्स्ट डिस्कवर्ड, ऐसा कुछ साइट, तो इसीलिए नाम पड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर सिविलाइजेशंस ऑफ दैट पीरियड. बाकी के हम देखते हैं इज इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना. सो अलोंगसाइड ये इंडिया के साइड में ये पर्टिकुलर सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ. नाउ इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ कोर्स द यूज ऑफ ब्रॉन्ज, कॉपर बेस्ड मेटल्स दैट वी आल्सो फाउंड ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स ब्रॉन्ज के पाए गए हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द ब्रॉन्ज एज एज वेल. किसने इसको एक्सकवेट किया, द नेम इज दयाराम साहनी दैट हु एक्सकवेटेड हड़प्पा, और मोहेंजोदारो दैट इज रकलदास बैनर्जी. एंड ये किसके कहने पे हुआ था, दिस इज मेनली सर जॉन मार्शल, जो तभी डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. सो ही स्टार्टेड, यू कैन से ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ दीज एक्सकवेशंस. सो सर जॉन मार्शल, यहाँ पे आपको याद रखना है इनके नाम. So this was all with regard to the Harappan civilization. Now Harappan civilization में why are they so famous, or why are we knowing or trying to relate to them even today? Because उस time पे अगर हम देखें, Harappan civilization was far ahead of its times. It is considered as the first urbanization, is urban civilization if you have to tell, because वहाँ पे town planning थे, grid pattern of roads थे, drainage system था, you know, they had seals, they used to do trade and commerce with other regions as well. तो बहुत ahead था. and हम किस time period की बात करें, 2500 BC. so way back in history, जहाँ पे हम देखते हैं you know this kind of civilization that we can draw parallels with in the present times, हम देखते हैं उस time पे हुआ करता था. so that is where we are discussing and trying to understand more about this period. Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है गगनयान एनालॉग एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोल रहे हैं ज्ञान-X. तो ये किसने कंडक्ट किया, ये कंडक्ट किया है इसरो, एंड ये गगनयान से रिलेटेड है. अभी गगनयान क्या है, गगनयान इज first human space flight mission that is going to be launched by India. okay, and यहाँ में हम देखते हैं कि 3 लोगों को भेजा जाएगा, okay, 3 दिन के लिए for outer space you can say mission, and they will successfully come back to
अर्थ। तो ये जो एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम कंडक्ट कर रहे हैं बिफोर द एक्चुअल मिशन डज हैपन। तो एक्चुअल मिशन कब होगा ये आपको मुझे बताना है। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। उसके पहले हम देखते हैं वी आर ऑल्सो सेंडिंग रोबोज इन स्पेस जस्ट टू सी एंड गेट एन आइडिया अबाउट इट। तो जैसे कि हमने देखा व्योममित्र, राइट, यहाँ पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज रोबोट्स भी हम भेज रहे हैं बिफोर द एक्चुअल मिशन। सो बिफोर सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने पड़ते हैं, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक और मिशन करके ज्ञानेक्स कर रहे हैं। तो ये 10 दिन का एक मिशन है, ये बैंगलोर में ही कंडक्ट होगा। तो पर्पस क्या है, दे आर क्रिएटिंग स्पेस लाइक सिमुलेशंस, ओके, स्पेस लाइक कंडीशंस एस्ट्रोनॉट्स के लिए, ताकि और भी दे आर मोर अकस्टम्ड टू दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट। तो कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, वी हैव अंगद एंड 2 others, जो ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप है, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्चुअल गगनयान मिशन। सो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 11 सच एक्सपेरिमेंट्स होंगे और बहुत सारे डेटा ये कलेक्ट करेंगे। द क्वेश्चन फॉर यू इज व्हेन इज दिस गगनयान मिशन शेड्यूल्ड? यू कैन आंसर दैट in the comment section. All right, proceeding to the next article. Okay, in this also क्या-क्या इनके फीचर्स हैं ये भी डिस्कस किया है. So ये स्पेसक्राफ्ट लाइक कंडीशंस में होंगे. यहाँ पे एक चीज याद रखना है, ये जो फूड भी कंज्यूम करेंगे, so they are going to be right inside this particular environment, और फूड भी ऑलरेडी दिया गया है उनको. और किसने यहाँ पे डिजाइन या डेवलप किया इसको? इट इज बाय द DRDO. So this can be a little confusing. Okay, according to the newspaper, ये आप सोचोगे कि इसरो का ही है तो इसरो ही डेवलप करेगी, बट नहीं, ये DRDO ने बनाया है द फूड विद रिगार्ड टू दिस, एंड ये बैंगलोर में कंडक्ट होगा. दे विल परफॉर्म देयर डेली रूटीन एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स. ओके, बहुत सारा यहाँ पे चीज होगा इन दिस स्टिम्युलेटेड स्पेस लाइक कंडीशंस. फर्दर एक अगर डिफरेंस की बात करें इन दिस मिशन एंड द गगनयान मिशन, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी होगा, बिकॉज वी टॉक अबाउट अगर अर्थ के बाहर, ओके, या वी से दैट माइक्रो ग्रेविटी, ये कंडीशंस हम अर्थ में नहीं बना सकते. तो यहाँ पे इंडिया में अर्थ में जो ग्रेविटी है ये वो महसूस कर पाएंगे, जो एक्चुअल में नहीं होगा व्हेन दे आर गोइंग टू परफॉर्म दिस आउटर स्पेस. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है भूपेन हजारिका के बारे में. सो सितंबर 8 वी सी दैट उनके 100 years पूरे होंगे, बट अभी he passed away, right? So that is he was born on 1926. He would have had his 100th birthday, but unfortunately he couldn't, and therefore we see that Assam की government जो है, it is conducting a year-long celebrations of this particular person called Bhupen Hazarika, जो एक poet, singer, composer, filmmaker, and also received a number of awards. Okay, the very high prestigious awards इनको मिले हैं. तो उनके बारे में कुछ facts जान लेते हैं. This can help you also in AILET and other exams. So भूपेन हजारिका अगर हम बात करें, September 8, 2025 से इनके centenary celebrations, 100 years celebrations start हुए हैं. Now he is from Assam. एंड जो भी उनकी पोएम्स हुआ या कॉम्पोजिशंस है, ही वुड ऑल्सो हैव ब्रह्मपुत्र रिवर एज द मेटाफर, एज द मेन एस्पेक्ट ऑफ हिज इन हिज वर्क. तो इनके थीम्स रह चुके हैं सॉलिडारिटी, डिग्निटी, ह्यूमैनिटी, रेजिस्टेंस, ओके, कनेक्टिंग द नॉर्थ ईस्ट टू द रेस्ट ऑफ इंडिया. ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पीस, स्पेशली बैक इन द डे जहाँ पे ULFA, okay, that is the Assam Liberated Front, okay, United Liberation Front of Assam. तो यहाँ पे जब इनके kind of mediations होते थे, so even he also said कि I will be a mediator between the union government and this group in Assam. So he's looked after की strength Assam के लोगों के बारे में, जो anti-immigration protest चल रहे थे उसमें उन्होंने साथ दिया. So he has done a number of work with regard to this, and that's why he's very well known. He's also directed many Assamese films like Shakuntala and Pratidhwani, and इनको अलग अलग awards and recognitions भी मिले हैं. तो जान लेते हैं कौन से हैं वो. National Awards, दादा साहेब फाल्के Award, which is given in the field of cinema. ठीक है,
Next, Padma Bhushan. Then he also headed the Sangeet Natak Academy and the Assam Sahitya Sabha. Along with that, Bangladesh का जो highest civilian honor है ये भी इनको मिला है, and भारत रत्ना in 2019 posthumously यानी मरने के बाद भी भारत रत्ना मिलता है, तो इनको ये भारत रत्ना अवार्ड भी मिला है. So this was all about Bhupen Hazarika. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है राजस्थान असेंबली पासेस द एंटी कन्वर्जन बिल. नाउ कुछ दिन पहले वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस. सो करंटली रिमेंबर व्हाट इज एंटी कन्वर्जन बिल. पहले ये देखते हैं. एंटी कन्वर्जन बिल है कि आप किसी को फोर्सफुली चेंज नहीं कर सकते हो किसी का रिलीजन, ओके, ईदर बाय फोर्स, ईदर बाय थ्रेट, ईदर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज. यहाँ पे आप फोर्स नहीं कर सकते हो टू अ पर्सन टू चेंज देयर रिलीजन. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट एंटी कन्वर्जन, हमको याद रखना है कि इंडिया में there is no national level law on anti-conversion. We have not having a single law on conversion. But अलग अलग स्टेट्स ने यहाँ पे बताया है कि they have started their own anti-conversion laws. So can you tell me which is the first state? Okay, because I covered this in my previous article. कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेट है जिसने एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आए थे? Okay, और राजस्थान इज द लेटेस्ट की बात करें देन राजस्थान होगा आपका आंसर. नाउ एंटी कन्वर्जन के बारे में, ऑफ कोर्स कन्वर्जन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में भी नहीं बताया है, बट वी हैव एन आर्टिकल कॉल्ड एज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. यानी कि आप रिलीजन खुद चूज कर सकते हैं. यू कैन सिलेक्ट वट एवर रिलीजन यू वॉन्ट, एंड ये आर्टिकल 25 में आता है, विच इज अ फंडामेंटल राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं ये जो बिल है या जो लॉ अभी बना है प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कन्वर्जन की बात करें, सो यहाँ पे जो पेनल्टीज हैं काफी हाई है. कैन गो अप टू 1 crore. ओके, बहुत ज्यादा जेल हो सकती है. सो here you see that the bill or the act that is passed by the parliament, by the legislature of Rajasthan, it is kind of very steep, it is very strict, it is very stringent is what we can say. So this was just a recap for you with regard to Rajasthan. Let's proceed to the next article. Now अगला आर्टिकल भी हमने कल के दिन में डिस्कस किया था. We discussed about the Kathmandu burning. We discussed about the graft and gag. याद है आपको कि नेपाल में क्या हो रहा है? नेपाल में यहाँ पे 19 लोगों के यूथ मारे गए थे बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट. और वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे थे बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी ओली शर्मा, ऑफ कोर्स अभी उन्होंने रिजाइन कर लिया है, बट उन्होंने अनाउंस किया था कि अब से जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर की बात करें, ऑल दिस हैज बीन बैंड. सो जो जेनजी लोग हैं, ओके, दे हैड प्रोटेस्टेड. सो लेट्स क्विकली सी, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप अगेन. ट्रिगर वार्निंग क्या था? ट्रिगर क्या था? जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी ओली शर्मा. ऑफ कोर्स अभी इन्होंने रिजाइन कर लिया है, ठीक है, ही इज रिजाइन नाउ. तो इन्होंने क्या अनाउंस किया था? दैट इज बैनिंग द सोशल मीडिया वेबसाइट्स. फर्दर जेनजी यूथ ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे जो 96 से 2012 बॉर्न है, एंड व्हाट वाज द ग्रुप दैट इज देयर, दैट नेक्स्ट जनरेशन नेपाल. दिस इज द ग्रुप दैट दे हैड स्टार्टेड वाया द फेसबुक पेजेस. फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? नाउ दैट इज वन रीजन कि सोशल मीडिया, दैट इज 26 सच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर बैन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनको गुस्सा आ रहा था गवर्नमेंट पे. क्यों? बिकॉज यहाँ पे मैसिव करप्शन है. पॉलिटिकल इम्यूनिटी सिंस नेपाल बिकेम अ रिपब्लिक, ठीक है, बहुत सारा करप्शन और लीडर्स को बहुत यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, उनको इम्यूनिटी दिया गया है मेनली आफ्टर नेपाल बिकेम अ रिपब्लिक इन 2008. सेकेंड, जो पॉलिटिशियंस भी है उनके बच्चों का भी लाइफस्टाइल एकदम बढ़िया है. ओके, सो दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू टर्म देम एज नेपो बेबीज एंड नेपो किड्स. तो नेपोटिज्म की बात करें, सो वोकैबुलरी में हमने पढ़ा है नेपोटिज्म मतलब समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद फैमिली. ओके, यू गेट अ पोस्ट और यू गेट अ पोजीशन बिकॉज यू आर एसोसिएटेड विद योर फैमिली, इज एसोसिएटेड विद इन हाई ऑफिसेस, राइट, जैसे मूवीज में हम देखते हैं, बॉलीवुड में देखते हैं. सो नेपो बेबी, सो उनके पॉलिटिशियंस का भी यहाँ पे ऐसा ही था
सिनेरियो, जॉब्स कम है, बहुत सारा इनइक्वालिटी है. सो ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ इग्नाइटेड, राइट, वो जो फाइनल स्पार्क क्या था, ये जो बैन हुआ. एंड वी सी दैट दिस बैन में प्रोटेस्ट के टाइम जो बहुत सारे यूथ यहाँ पे मारे गए, लाइक 19 ऑफ देम, व्हिच इज अ बिग नंबर. एंड इसके अलावा इट वाज इवन मोर फर्दर यू कैन से वर्सेंड, या कैसे यहाँ पे खराब हो गया और भी ज्यादा, बिकॉज दे स्टार्टेड इवन असॉल्टिंग the ministers that are there of Nepal, the government. They started attacking the families, they started burning their houses. KP Oli Sharma को भी यहाँ पे attack किया गया था. So a lot of things that happened. Finally resign किया है. So now what is the situation in Nepal now? यहाँ पे youth के जो एक favorite है, who is a rapper turned politician. He's a mayor. Okay, Balen Singh करके है. So probably he is going to be the leader, next leader. यहाँ पे आर्मी ने भी intervene किया है, but most likely army is not going to be ruling in this case. ऐसे लिखा गया है. So we're going yet to see what will happen, what will culminate in this particular process. ये अभी देखना बाकी है. प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पे एक हाई चेयर कमिटी ऑन सिक्योरिटी होस्ट किया था, और उन्होंने बोला कि नेपाल में शांति बनाए रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी नेबरिंग कंट्रीज में होती है तो उनके इफेक्ट्स हमको भी आते हैं. सो दैट इज वेयर वी सी दैट इट्स नेसेसरी दैट देयर शुड बी पीस एंड calmness in this particular region, because of course it may affect us too. Proceeding to the next article, again with regard to international relations, हम देखते हैं कि इजराइल ने स्ट्राइक किया है एक बिल्डिंग इन कतार. ठीक है, दोहा, कतार. So why did they attack Doha? They were not attacking Doha. They were attacking the Hamas leadership who have their building in Doha, Qatar. So let's quickly see what was their target. The target was the Hamas political headquarters. जो लीडर वो एक्चुअली टारगेट करने वाले थे वो सर्वाइव हुआ, बट 5 members were killed, including the son of Khalil al-Haya, who is the Hamas Gaza leader and the top negotiator. So यहाँ पे it is seen as this particular strike. Of course, it's not liked by Qatar. Qatar कहता है कि बहुत ही flagrant violation of all international laws है. It is a very cowardly attack, is what Qatar has termed this. तो इजराइल ने अटैक क्यों किया? इजराइल यानी कि द प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं कि दिस वाज अ रिटेलिएशन टू द अटैक दैट दे हैड. हमास ने उन पे अटैक किया जहां पे उनके सोल्जर्स मारे गए थे. ओके, सो 6 soldiers died in Jerusalem, there 4 soldiers died in Gaza. तो इसका रिटेलिएशन उन्होंने ऐसे किया. US of course is seeing this. Now US का ally है कतार, but at the same time it is close friends with Israel. So ये जो है एक बैलेंसिंग एक्ट US भी प्ले कर रहा है कि हाँ उन्होंने हमको इन्फॉर्म भी किया था before this attack and so on. And we see that conditions are yet to be unraveling. If you see that UN के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने भी इस अटैक को कंडेम किया कि we should have like a permanent ceasefire for this particular case. So this is all with regard to the strikes that happened in Qatar, and that is all with regard to today's article. बहुत सारे interesting articles हमने national और international sector में देखे. I hope you have understood everything. If you have any questions, do write to us in the comment section. Thank you so much for watching.